All right. Good morning, everybody. Here in North America, good afternoon, probably in Europe, and good evening in the eastern part of the world. Welcome to this special event on the Valentine Day today, Rise in Love. And this is Swami Prem Vivek. This event has been organized and helped by many friends, many friends. So we got Osha Amritam Sangha friends here that are co-host. Swami Paritosh is here, has been helping us. Swami Atmo Ninad from India. And thank you all for joining, and special thank obviously to Swamiji for agreeing to create this event of celebration, Rise in Love for us. So thank you very much for joining, everyone. So Swamiji does not need a whole lot of introduction. Everybody knows Swamiji, but in like one or two sentences. Swamiji has been Osho's spokesperson for many years, and one of the sannyasin that has been working of spreading Osho love from 1971 or so, as I recall. Swamiji is a very close, near and dear to all of us, and we get an opportunity to be with Swamiji and his presence and him conducting such beautiful events globally for us and being able to spread the message of the master. So I will say that much and say welcome everyone. Swamiji, I will actually hand it over to you to take us through this beautiful celebration today. Thank you very much. This evening, I'm feeling very grateful to you and to Swami Paritosh and Swami Atmoninath, all three of you. You have invited so many beloveds of Osho to come together and feel the oneness of love. Love is oneness, does not divide. And especially, I think of your name today, Swami Prem Vivek. Prem is love, Vivek is awakened intelligence. So you have been trying a lot, also sharing this awakening of love within you is like the fragrance of a flower. And Swami Paritosh has been so wonderful, as his name is Dhyan Paritosh, the contentment of uh, what happened. We're okay, Swamiji, we're back. I think someone was trying to flash on Swami Paritosh. We couldn't probably find his picture. I'll flash. He will join. Yes. So when one is contented, one is transformed by meditation. His contentment, his sharing is overflowing. And so is Atmaninad, who has been very busy in sharing to hundreds of people every day in India. So it's a feeling of love that wants to share. So this evening is the evening of sharing. Well, it is morning for you, evening for me. So day and night have also become one. Welcome, Swamininath and Chetnama. I see you now. We were waiting for you, and now we can begin. Thank you, Swamiji. Yes. And because you have joined and your friends have joined, I start speaking in Hindi also a little bit before Yes, we. Yes. So इस प्रेम भरी संध्या में भारत के लिए कह रहा हूँ जो हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी नहीं जानते ज्यादा, इस प्रेम भरी संध्या में आप सबका स्वागत है। और ये ओशो की ही संध्या है। संध्या सत्संग थोड़ा विलंब से हो रहा है, पहले सत्संग हो चुका होगा स्वामी आत्मनिनाथ के साथ। तो इसमें हम सारे विश्व के लोग ओशो प्रेमी एक संध्या में एकत्रित हुए हैं और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और हम प्रेम के इन मधुर क्षणों को जिएंगे। We will be living these moments, magical moments of love together this evening and this morning. So I welcome you all. Before
we begin this, I would like that we play Osho discourse so that we settle listening to the voice of our beloved master about this rising in love. हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा, और उनकी वाणी को सुनना अपने आप में एक सुगंधित जगत में प्रवेश करना है, एक अपने आप में एक जागृति के जगत में प्रवेश करना है। उनकी जो तरंगे हमें स्पर्श करती हैं, हमारा हृदय अपने आप से खुलना शुरू हो जाता है। तो पहले आइए हम ओशो की वाणी को सुनते हैं। फर्स्ट वी लिसन टू मास्टर and then we would be doing meditation of radiating love. So let's get ready for that. Sitting with eyes closed, only becoming a listener. Let listening happen. श्रवण करते हैं ओशो की वाणी का। प्रेम बड़ा जीवन शब्द है, होना ही चाहिए, क्योंकि सारा जगत प्रेम से जीता है। तुम जन्मे हो प्रेम से, तुम जियोगे प्रेम में, और काश तुम मर भी सको प्रेम में, तो धन्यभागी हो। जन्मते सभी हैं, जीते बहुत कम हैं, मरते तो कभी कभी कोई। जन्मते सभी प्रेम में, इसलिए प्रेम की प्रबल आकांक्षा जीवन में होती। प्रेम मिले, प्रेम बटे, प्रेम दिया जाए, प्रेम लिया जाए। जीवन का सारा आदान प्रदान प्रेम के सिक्कों का है। प्रेम से मत भागना, क्योंकि जो प्रेम से भागा वो जीवन से भागा, और जो जीवन से भागा वो परमात्मा के मंदिर को कभी भी खोज ना पाएगा। मछली की तरह तड़पाएगा। एहसास तुझे पायाबी का, जीना है तो अपने दरिया में, इम्कान तला तुम रहने दे। घबरा मत तूफानों से, अगर जीना है तो अपने दरिया में, इम्कान में तला तुम रहने दे आंधियां तूफानों की संभावना। अगर आंधी और तूफान की सारी संभावना काट दी तो दरिया दरिया न रह जाएगा, छिछला हो जाएगा। मछली की तरह तड़पाएगा, एहसास तुझे पायाबी का, फिर उथला पानी तुझे मछली की तरह तड़पाएगा। तूफान रहने दो, क्योंकि तूफानों से टक्कर लेके ही जीवन निखरता है। तूफानों में से गुजर के ही जीवन का निखार आता है। प्रेम को मैं धर्म कहता हूं, लेकिन कठिन है, क्योंकि तुमने प्रेम को केवल वासना की तरह जाना है। इसलिए तुम्हारे डर को मैं समझता हूं। तुम घबराए हो। प्रेम से तो तुमने केवल वासना जानी। प्रेम से तो तुमने अपने बहुत निम्नतम रूप का ही संबंध जोड़ा है। ये तुम्हारी भूल है, इसमें प्रेम का कोई कसूर नहीं। अब किसी आदमी के हाथ में हीरा हो और वो उसको किसी के सिर में मार के सिर तोड़ डाले, तो इसमें हीरे का कसूर है कि तुम हीरे से बचोगे। हीरे का काम किसी का सिर तोड़ डालने नहीं है। ये तो छोटे मोटे पत्थर से भी हो सकता था। मनुष्य ने प्रेम ऊर्जा का बड़ा निम्नतम उपयोग किया है, क्षुद्रतम उपयोग किया है। वो उपयोग है और संतति को पैदा करना। प्रेम का जो परम उपयोग है वो स्वयं को जन्म देना है। प्रेम का जो साधारण उपयोग है वो दूसरे को जन्म देना है। प्रेम की जो आखिरी पराकाष्ठा है वो अपने को जन्म देना है, आत्मजन्म। प्रेम की जो आखिरी पराकाष्ठा है वो बाहर दिखाई पड़ने वाली देहें, शरीर, रूप, रंग, इन पर ही समाप्त नहीं हो जाती। रंग में जो छिपा है, रूप में जो छिपा है, दृश्य में जो छिपा है, जब वो दिखाई पड़ने लगे तब तुम समझना कि तुमने प्रेम का पूरा उपयोग किया। तुम्हारे पास रोशनी, लेकिन रोशनी से अगर तुम जिंदगी की गंदगी ही देखते फिरो तो रोशनी का कोई कसूर नहीं। ये रोशनी तुम्हें जिंदगी का परम रूप भी दिखा सकती थी। है तेरा हुस्न जब से मेरा मरकजे निगाह, हर शय है एतबारे नजर से गिरी हुई। और एक बार
उसका रूप तुम्हें थोड़ा दिखाई पड़ने लगे, थोड़ी उसकी झलक आने लगे, उसके हुस्न की, उसके सौंदर्य की। फूलों में से कभी तुम्हें उसकी आंख भी झांकती दिखाई पड़ने लगे, सागर की लहरों में कभी तुम्हें उसकी भी लहर का अनुभव हो जाए। है तेरा हुस्न जब से मेरा मरकजे निगाह, तुम्हारी आंख में जरा उसके सौंदर्य की छाया बनने लगे, प्रतिबिंब परछाई पड़ने लगे, हर शह एतबारे नजर से गिरी हुई, उसी दिन से सब चीजें मूल्य खो देंगी। उसी दिन से तुम धन, पद, प्रतिष्ठा, देह, वस्तुएं, इन सब का मूल्य गिर जाएगा। महावीर कहते हैं इन सब का मूल्य गिरा दो तो सत्य तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम परमात्मा का थोड़ा इशारा खोजने लगो, थोड़ा उसका हुस्न तुम्हारी आंख में उतरने लगे, थोड़ा उसका नशा तुम्हें मदमस्त करने लगे, तो चीजें अपने आप छूट जाएंगी। और ये दो ही रास्ते, या तो चीजें छोड़ो तो सत्य का दर्शन होता है, या सत्य का दर्शन शुरू करो तो चीजें छूट जाती। अब मैं तुमसे कहता हूं कि पहला मार्ग बड़ा खतरनाक है। चीजें छोड़ो, पक्का नहीं कि चीजें छूटने से उसका दर्शन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चीजें छूटने से तुम केवल सुकड़ कर रह जाओ, दर्शन की क्षमता भी खो जाए। ऐसा ही हुआ है। कभी कोई एकाध महावीर अपवाद हो जाते हैं, बात अलग, नियम नहीं है वे। अधिक लोगों को तो मैं यही देखता हूं कि चीजें छोड़ छोड़ के उनको कुछ मिला नहीं, कुछ छूटा जरूर, मिला कुछ भी नहीं। मिलने से तो वो भयभीत हो गए, डरते। मैं तो तुमसे कहूंगा छोड़ना मत जब तक कि श्रेष्ठ का अनुभव ना हो जाए। श्रेष्ठ को पहले उतरने दो, आने दो रोशनी को, फिर अंधेरा जाएगा। तुम खेल रहे थे कंकड़ पत्थर से, फिर कोई हीरे दे गया, तुम कंकड़ पत्थर छूट जाएंगे। हीरे जब सामने हो तो मुट्ठियां कौन कंकड़ पत्थरों से भरेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम कंकड़ पत्थर छोड़ दो तो कोई आके हीरों से तुम्हारी मुट्ठियां भर दे। अक्सर तो मैं देखा हूं जैन मुनि जब मेरे पास कभी आते हैं तो उनकी बात सुन के बड़ी व्यथा होती। तो वो यही कहते हैं कि हमने छोड़ तो सब दिया लेकिन पाया तो कुछ भी नहीं। जिंदगी हो गई छोड़ने में, अब मौत करीब आने लगी, अब तो हाथ पैर भी कपने लगे, अब डर भी समाने लगा, अब लौट के भी उस संसार में नहीं जा सकते जिसको छोड़ आए। अब थूक के चांटना ठीक भी नहीं मालूम होता, और समय भी ना रहा, शक्ति भी ना रही। लेकिन भीतर एक संदेह उठता है। न मालूम कितने जैन मुनियों ने मुझसे कहा है कि भीतर एक संदेह उठता है कि हमने छोड़ के ठीक किया। कहीं हमसे कुछ भूल तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं था कि यही संसार सब कुछ है और हम इसको भी छोड़ बैठे। दूसरा तो मिला नहीं, ये छूट गया। तुम्हें उनकी पीड़ा का अंदाज नहीं, क्योंकि तुम उसे केवल उनका प्रवचन सुनते हो। प्रवचन में तो वो वही दोहराते हैं जिसको सुन के वो फंस गए। प्रवचन में तो वो सत्य नहीं कहते। अभी तक आदमी इस प्रामाणिकता को उपलब्ध नहीं हुआ कि प्रवचन में सत्य कहे। प्रवचन में तो वो वही कहता है जो तुम्हें रास आता है, बात है। अब जैनों के बीच बोलते हैं तो जो जैनों को रास आता, जो उनके शास्त्र के अनुकूल पड़ता है, वही बोलना पड़ता है। जब मेरे पास कभी आ जाते हैं, क्योंकि अब तो उनके अनुयायी भी आने नहीं देते, पहले आ जाते थे तो मुझसे कहते थे अकेले में बात करनी, अपने अनुयायियों को बाहर कर देते। अकेले में क्यों करनी है? वो कहते कि आप इनको तो बाहर जाने दे, इनके सामने सच ना कहा जा सकेगा। अकेले में उनके प्रश्न बुनियादी रूप से 3 मैंने पाए। एक, कि उन्होंने छोड़ दिया सब लेकिन भीतर से रस नहीं गया है। दूसरा, जो जो वासनाएं उन्होंने दबा ली हैं
जैसे जैसे देह कमजोर होती जाती वो वासनाएं प्रबल होकर उभर रही। 45 साल के बाद पता चलना शुरू होता है जो जो दबा लिया वो मुश्किल में डालता है, क्योंकि दबाने की ताकत कमजोर हो जाती, दबाने वाला दीन होने लगता है, क्षीण होने लगता है, और जो वासना दबाई है अंगार की तरह वो ताजी रहती। और तीसरी बात, एक संदेह कि हमने जो किया वो ठीक किया, ये उचित हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो संसार में है वही ठीक हो। अब ये बड़ी दयनीय दशा है, ये तुमसे ज्यादा दयनीय दशा है, ये तुमसे ज्यादा मुश्किल और उलझन की दशा है। तुम्हारे पास कुछ तो है, संसार ही सही, ये हाथ बिल्कुल खाली हो गए। इन खाली हाथों की दीनता देखो। मैं तुम्हें दीन नहीं बनाना चाहता, मैं कहता हूं तुम परमात्मा को खोजो। वो जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे संसार तिरोहित होता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे हाथ भरने लगेंगे उससे, वैसे वैसे तुम पाओगे संसार से हाथ हटने लगे। हटाना ना पड़ेंगे, हटाना पड़े तो दमन होता है, हट जाएं, अपने से हट जाएं तो उसका सौंदर्य ही अनूठा है। फिर उसकी लकीर भी नहीं रह जाती, भीतर पीड़ा भी नहीं रह जाती। जिस दिन से इश्क अपना हुआ मीरे कारवां, आगे बढ़े हुए हैं हर एक कारवां से हम। और जिस दिन तुम अपनी बागडोर प्रेम के हाथ में दे दोगे, जिस दिन से इश्क अपना हुआ मीरे कारवां, और जिस दिन से तुम्हारा पथ प्रदर्शक अगुआ प्रेम हो जाएगा, आगे बढ़े हुए हैं हर एक कारवां से हम, उसी दिन तुम पाओगे तुम सबसे ज्यादा आगे बढ़ गए हो। प्रेम के अतिरिक्त कोई आगे बढ़ा नहीं। प्रेम पथ प्रदर्शक है, प्रेम प्रकाश का दिया है। खतरे मुझे मालूम है कि प्रेम के हैं, क्योंकि तुमने प्रेम का गलत रूप जाना है। लेकिन तुम्हारे गलत रूप जानने के कारण सत्य तुमसे न कहूं तो वो और भी खतरनाक होगा। मैं वही कहूंगा जो ठीक है। तुम्हें उसमें से गलत निकालना हो निकाल लेना, वो तुम्हारी जिम्मेवारी, लेकिन जिम्मेवार तुम ही रहोगे। लेकिन इस कारण कि कहीं तुम कुछ गलती ना कर लो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हारी जिंदगी तो पूरे पूरे ऊर्जा से भरी हुई होनी चाहिए। कोई हर्जा नहीं, आज गलत जाओगे, जिस ऊर्जा से गलत गए हो उसी ऊर्जा से वापस भी आ सकते हो। लेकिन प्रेम को जरा कसना, रोज रोज ऊपर उठाना, रोज रोज देखना कि उसके और नए नए सोपान हैं, मधुर मधुर सोपान हैं, बड़े प्रीति भरे। तुम तो जिसे प्रेम कहते हो वो बड़ा मिश्रित अवस्था है, जिसे सोने में बहुत कूड़ा करकट मिला हो, इसलिए तुम्हारे प्रेम में घृणा भी मिली। तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को घृणा भी करते हो। तुमने कभी जांचा अपने मन को कि जरा पत्नी नाराज हो जाती है कि तुम सोचते हो मरी जाए तो बेहतर, सोचने लगते हो कि हे भगवान इसको उठाओ। कहां फंस गए इस चक्कर में। बेटा तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता तो तुम मां कहने लगती कि तुम पैदा ही ना हुए होते तो अच्छे थे। तुम्हारे प्रेम से घृणा बहुत दूर नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारा अभिशाप बहुत दूर नहीं, पास ही पास बैठे। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे आंसुओं से बहुत ज्यादा दूर नहीं। थोड़ा जागो, इसे देखो। तुम्हारा प्रेम क्षण में क्रोध बन जाता है, क्षण भर में क्रोध बन जाता है। अभी जिसके लिए तुम जान देने को तैयार थे, क्षण भर में उसी की जान लेने को तैयार हो जाते। जरा सोचो, जरा जागो और देखो। ये प्रेम बहुत गंदगियों से मिला हुआ है। इसमें क्रोध भी है, इसमें द्वेष भी है, इसमें ईर्ष्या भी है, मत्सर है, मोह है, राग है, घृणा है, हिंसा है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसी की गर्दन दबाने लगते हो, इतनी हिंसा है। प्रेमी अक्सर एक दूसरे को मार डालते।
विवाह की तिथि अक्सर मरण की तिथि सिद्ध होती। एक आदमी का विवाह हो रहा था, राह पर एक मित्र मिल गया, कल विवाह होने वाला था। उस मित्र ने कहा, बड़ी बधाइयां। उस मित्र ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं, अभी मेरा विवाह हुआ नहीं, कल होने वाला। उसने कहा, इसलिए तो बधाइयां दे रहे हैं, फिर बधाइयां देने का उपाय ना रहे। एक दिन और बचा है, जी लो, चल लो मस्ती से, स्वतंत्रता से। अगर राह पे तुम स्त्री पुरुष को चलते देखो तो तुम तत्क्षण कह सकते हो कि पति पत्नी है या नहीं। पति डरा डरा चल रहा है, नीचे नजर रख के चल रहा है, इधर उधर देखता नहीं, क्योंकि झंझट खड़ी हो जाए। ये प्रेम गर्दन को काट जाता है। मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, एक महिला मेरे साथ उस डब्बे में थी। उसका पति भी था, लेकिन वो किसी दूसरे डब्बे में था, पर वो हर स्टेशन पे आता है। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे शक होता है ये पति हो नहीं सकते। उसने कहा, क्यों? वो थोड़ी चौंकी। कितने दिन हुए शादी हुए? मैंने कहा, क्योंकि 7-8 साल हो गए। ये बात उपन्यास में हो सकती, 7-8 साल हो गए और पति हर स्टेशन पर उतर के आते हैं इस भीड़ भड़क्का में। वो कहने लगी, आपने ठीक पहचाना, वो मेरे पति हैं नहीं, लगाव है। तब बात ठीक है, लगाव एक बात है, पत्नी तुम किसी और की होगी, नहीं तो अपना पति हर स्टेशन पर उतर के आए। एक दफा जो छूटा तो आखिरी स्टेशन पे भी आ जाए तो काफी। प्रेम में बड़ा और बहुत कुछ मिला हुआ है। एक दूसरे की गर्दन दबा देते। हां, बहाने हम अच्छे खोजते, लेकिन जिसको प्रेम कहें वो अभी बड़ी दूर है। लेकिन जिसे तुम प्रेम कह रहे हो उसमें भी वो पड़ा है। इसलिए मैं ये ना कहूंगा इस सबको फेंक देना, इसको निखारना है। इस सोने में मिट्टी मिली है, माना, मिट्टी को काट डालना है, सोने को बचाना है। तो दुनिया में कुछ लोग हैं जो इसी को प्रेम समझ रहे हैं, वो गलत। और दुनिया में कुछ लोग हैं जो मिट्टी के कारण इस पूरे प्रेम को फेंक देने को कहते हैं, वो भी गलत, पहले से भी ज्यादा गलत। क्योंकि मिट्टी के बहाने कहीं सोने को मत फेंक देना। अहिंसा की धारणा में वही हो गया है, फेंक ही दो इस प्रेम को, इसमें खतरा है, इसमें उपद्रव है, इसमें तनाव है, परेशानी है, अशांति है, फेंक ही दो। लेकिन साथ ही सोना भी चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, ये दोनों अतियां हैं, इनसे बचना। इसमें से मिट्टी तो काटनी है, घृणा काटनी, क्रोध काटना है, मत्सर ईर्षा अलग करनी है, प्रेम को निखारना है। जीवन एक प्रयोगशाला है प्रेम को निखार लेने की, और धन्य भागी हैं वे जो अपने प्रेम को पूरा निखार लेते। उस प्रेम के निखरे रूप में ही जगत जैसा दिखाई पड़ता है, उसका नाम परमात्मा है। उस प्रेम के निखरे रूप में ही तुम जिस नियति को उपलब्ध होते हो, उसका नाम आत्मा है। Rising in love is something spiritual. Falling in love is something biological. Biology is blind. That's why love is called blind. But the love I am talking about is the only insight that is easily available to everyone. Just a little effort. Love should come out of your silence, awareness, meditativeness. It is soft.
It is unbinding, because how can love create fetters for the one he loves? It is giving freedom to each other. More and more, as the love grows deeper, freedom becomes bigger. As the love grows deeper, you start accepting the person as he is. You stop trying to change the person. It is one of the miseries of the world that lovers are continuously trying to change the person. They don't know that if the person really changes, their love will disappear, because they had not fallen in love with this changed person in the first place. They had fallen with a person who was not touched by their ideas, change, this and that. Rising in love, you become aware that the other has its own territorial imperative, and you are not to encroach upon it. If love becomes freedom, then there is no need to separate. The idea of separation arises because you go on seeing that you are becoming more and more a slave, and nobody likes slavery. But you always ask me when you are in the ditch and cannot get out. One thing is certain, I am not coming into the ditch to take you out. You too have to manage it. If I come in the ditch to help you out, you both will be out and I will be in ditch. And I don't know anybody whom I can ask how to get out of here. I have never asked a single question to anybody about my life. It is my life and I have to live it. I have to solve its problems. I have never taken any advice. I have never accepted anybody's advice which was not asked in the first place. I have told those people that you have to understand that advice is the only thing everybody gives free of charge and nobody takes it. Why bother? An advice given by a person whom you have not asked for it cannot be very wise. The wise man never imposes his idea on anyone. If somebody asks him, he simply gives his insight.
It is not a commandment that they have to do. There is no should in it. I can say only one thing. You have given both beautiful moments. Be grateful. Be thankful. The parting should not be ugly when meeting was so beautiful. You owe it to existence that the parting should be made beautiful. Forget all your promises. They were right when they were given. But the time has changed. You have changed. You both are standing on a crossroad, ready to move in different directions. Perhaps you may never meet again. Make it as graceful as possible. And once you understand that it has to happen gracefully or ungracefully, then it is better to make it graceful. At least your lover will live in your memory. You will love in the memory of the lover. In a certain way, those moments together will always enrich you. But depart gracefully. And it is not difficult when you understood love, which is a very difficult phenomenon, and fell without a second thought, you can understand very easily love has disappeared. Accept the truth of it and don't blame each other, because nobody is responsible. Help gracefully in deep friendship. Depart. Lovers, when they separate, become enemies. That is a strange kind of gratitude. They should become really friends. And if love can become friendship, there is no guilt, no grudge, no feeling that you have been cheated, exploited. Nobody has exploited anybody. It was just the biological energy which made you blind. I teach a different kind of love, which does not end in friendship, but begins in friendship. Which begins in silence, in awareness, which is your own creation, which is not blind,
such a love can long forever, can go on growing deeper and deeper. Now, the heart dance. आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसे हुजूर आओ।
just be still and feel your heart. Let your hands touch your heart for a moment after each song. हर गीत के बाद थोड़ी देर मौन खड़े रहें और अपने हृदय का स्पर्श करें. Close your eyes and feel your heart. Listen to the heartbeat.
Feel your heart. अपने हृदय का स्पर्श करें, हृदय की धड़कनों को सुने। अभयप्रदा मणिगणैः नानाविधैर्भूषिता पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्ता
universe is singing its song. The universe is dancing along. The universe is singing on a day like this. And it's high time to dance. It's high time to dance. And it's high time to dance. So wake up and dance. The universe is singing its song. The universe is dancing along. The universe is singing on a day like this. The universe is singing its song. The universe is dancing along. The universe is singing on a day like this. And it's high time to dance. It's high time to dance. And it's high time to dance. So wake up and dance. And it's high time to dance. It's high time to dance. And it's high time to dance. So wake up and dance. Universe is singing its song. The universe is dancing along. The universe is singing on a day like this. The universe is singing its song. The universe is dancing along. The universe is singing on a day like this. And it's high time to dance. It's high time to dance. And it's high time to dance. So wake up and dance.
We are invited guests on this planet, just passing through for a short time. We are given the opportunity to live as totally as possible, celebrating, making love. And thanking existence for giving us this earth to dance on. And since we must be, why not be all the love that we are able to be? And by being so, bring more peace and love to everyone and everything. That the love that we share today is the love that future generations will inherit. Why not be all the love that we are able to be? Our responsibility is to love now.
Now sit in silence. We are filled with heart energy, very delicious energy in our heart. We sit in meditation to feel it more and let it radiate around our being. अब हम बैठ जाएंगे आंख बंद करके, और ये जो हृदय की वीणा झंकृत हुई है इस मधुर संगीत से, हमारे आसपास ये व्याप्त है चारों ओर, इसे भीतर भी अपने बाहर भी अनुभव करेंगे। आंख बंद करके बैठ जाएंगे। Close your eyes and just sit with passive alertness, awake and relaxed. There is a beautiful meditation given by Osho. आंख बंद करके बैठेंगे और खुले हृदय से बैठेंगे आंख बंद करके। Sit in relaxed posture meditatively. Osho has given this meditation, radiate love. He says, try to possess something which cannot be taken away by anybody, not even by death. Difficult, but possible. It looks impossible. How to be loving without finding a lover? Our whole mind has been conditioned in a wrong way. Osho says, you can dance without the audience. Why can't you love without there being somebody? You can sing without a listener. Why can't you love without a lover? Your mind has been conditioned wrongly. You think you can love only when there is somebody to love. ओशो कहते हैं, बिना किसी प्रेमी के भी प्रेम पूर्ण हुआ जा सकता है अगर हम थोड़े ध्यान पूर्ण हो जाएं। जैसे कि बिना सुनने वालों के भी हम गीत गाते हैं और बिना कोई हमें देखे इसे हम नाचते भी हैं, तो प्रेम क्यों नहीं कर सकते? He says, practice love. Sitting alone in your room, be loving, radiate love. Fill the whole room with your love energy. और ये संभव हो पाता है कि हम अपने हृदय से प्रेम की ऊर्जा को विकीर्ण करें चारों ओर, अगर हम ध्यान पूर्ण हो जाएं।
और पूरे कक्ष को हम प्रेम से भर सकते हैं। Feel vibrating with a new frequency. Feel swaying as if you are in the ocean of love. Create vibrations of love energy around you, and you will start feeling immediately that something is happening. Something in your aura is changing. Something around your body is changing. A warmth is arising out of your body, around your body. A warmth like deep orgasm. You are becoming more alive. Something like sleep is disappearing. Something like awareness is arising. Sway into this ocean, dance, sing, and let your whole room be filled with love. जब हम अकेले हों, अनुभव करें कि आपके पास आसपास ऊर्जा की तरंगों का सागर है जिसमें आप बह जा रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जैसे ऑर्गाज्म हो रहा है अकेले में ही, जहां किसी की जरूरत नहीं है। ये ध्यान में आप स्वयं निर्मित कर सकते हैं, किसी पर निर्भरता नहीं होगी। एक निद्रा चली जाएगी और कुछ जैसे मस्ती भरी तरंग, उमंग, होश के साथ प्रकट होगी। इस अवस्था में आप अकेले कमरे में नाचें, मस्त हों, गाएं, जो भी भाव आए। ये एकांत का ध्यान है। In the beginning, it feels very weird. When for the first time you can fill your room with love energy, your own energy, which goes on falling and rebounding on you and makes you happy, one starts feeling, am I hypnotizing myself? Am I deluded? What's happening? कुछ अचंभा सा होता है ऐसी अवस्था में कि मैं कुछ स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, मैं कुछ सम्मोहित तो नहीं हो गया हूं। तो क्योंकि ये ऐसी अनजानी ऊर्जा हमें घेर लेती है, हम इस ऊर्जा में घिर जाते हैं। तो इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, इसे और इसकी अभिवृद्धि करने की जरूरत है और इसके साथ मस्त होने की जरूरत है। कभी भी जब आनंद मिले, उत्सव की तरंग आए, तो उस पर संदेह नहीं करना, उसको और जीना है और वो जीने से बढ़ जाती है। जैसा हम भाव करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो भाव में बड़ी ऊर्जा है। This is because you have always thought that love comes from somebody else. A mother is needed to love you, a father, a brother, a husband, a wife, a child, but somebody. Love that depends on somebody is poor love. Love that is created within you, love that you create out of your own being is real energy. हमें परमात्मा की ओर से ये भेंट मिली हुई है कि हम अपने ही भीतर प्रेम को जन्म दें, अपने को ही नया जन्म दें। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम नए हो जाते हैं और उस नए होने में हमारे भीतर एक जीवंतता आ जाती है। हम उस ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं, प्रवाह में आ जाते हैं और संदेह भी स्वाभाविक है कि ये कहां से आया। हम एक अस्तित्व में ऊर्जा से घिरे हैं। जैसा हमारा भाव होता है वैसी ही ऊर्जा को हम आकर्षित कर लेते हैं। तो भाव में जिए, भाव तरंग में रहें, उमंग में रहें और वैसी ही और ऊर्जा आपके पास आपको प्रवाहित करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। Then move anywhere with that ocean surrounding you. और हम इस सागर की ऊर्जा से भरे भरे हम कहीं भी अपने कक्ष से बाहर जाएंगे तो ये ऊर्जा हमारे साथ चलेगी। Then move anywhere with that ocean surrounding you and you will feel that everybody who comes close to you
is suddenly under a different kind of energy. People will look at you with more open eyes. You will be passing them, and they will feel that a breeze of some unknown energy has passed them. They will feel fresher. And this kind of feeling I always felt when Osho arrived in Gautama Buddha Auditorium or in his darshan room or wherever. A certain breeze, very delicious, very sweet, very magnetic, you know, presence comes with such a person. So same way, when we are meditative, this kind of energy moves with us. Hold somebody's hand and his whole body will start throbbing. Just be close to somebody and that man will start feeling very happy for no reason at all. You can watch it, then you are becoming ready to share. Then find a lover, then find a right receptivity for you. हम जब इस तरंग में, इस ऊर्जा, इस भाव दशा में होंगे, तो ये अपने आप जहां भी हम चल रहे होंगे, जहां भी उठ बैठ रहे होंगे, दूसरे भी, अजनबी भी अनुभव करेंगे. लेकिन पहले हम इसे अपने ही दायरे में, अपने ही कक्ष में, अपने ही ध्यान कमरे में, जहां भी हम हैं, एकांत में हैं, उसको अपने भीतर पैदा करें. ये प्रेम कोई भीख मांगने वाला प्रेम नहीं है जिसे राइजिंग इन लव कहते हैं. ये प्रेम बांटने वाला प्रेम है, देने वाला प्रेम है, और जो हम देते हैं वो 1000 गुना लौट आता है हमारे ऊपर. ये जगत एक तरह से इको पॉइंट है, जहां जो हम देते हैं वही लौट आता है. तो ओशो की देशना है कि हम पहले अपने साथ प्रेम पूर्ण हो, अपने रोए रोए में प्रेम को प्रकट करें, और फिर हमारा उठना बैठना एक सुगंध पूर्ण वातावरण को निर्मित करेगा, और हमें वैसी प्रेम पूर्ण ऊर्जा मिलेगी. अब हम इसके आधार पर ओशो की एक और 5 मिनट की, 6 मिनट की उनका संदेश सुनेंगे. ओशो चाहते हैं कि इस जगत में हम प्रेम के मंदिर बनाएं. ओशो is in coming discourse that we are going to play for 5-6 minutes in Hindi. Osho is suggesting that now is the time to start the temples of love. Enough of being Hindu, Muslim, this or that nationality, or forget all that. Create temples of love. Let's listen to his words. प्रेम तो निश्चित ही स्वभाव है, स्वरूप है. हम उसे लेकर ही जन्मे हैं, हम उससे ही बने. हमारा रोआ रोआ, कण कण, श्वास श्वास प्रेम के अतिरिक्त और किसी चीज से अनुप्राणित नहीं है. ये सारा अस्तित्व ही प्रेम का विस्तार है, या कहो परमात्मा का, क्योंकि प्रेम और परमात्मा एक ही सत्य के 2 नाम हैं. जीसस ने कहा है परमात्मा प्रेम है. जब उन्होंने यह कहा आज से 2000 साल पहले, तब बात बड़ी क्रांति की थी, महाक्रांति की थी. जीसस के पहले किसी ने कभी यह बात कही न थी. वस्तुतः परमात्मा के संबंध में ठीक इससे विपरीत बातें बहुत बार कही गई थी. जीसस जिस वातावरण में पैदा हुए थे, यहूदियों के,
उनकी धारणा थी कि परमात्मा बड़ा कठोर है। तालमुद में यहूदियों का परमात्मा घोषणा करता है कि मुझसे ज्यादा ईर्ष्यालु और कोई भी नहीं। जो मेरी दुश्मनी करेगा उसे मैं कभी क्षमा न करूंगा, मैं उसे विनष्ट कर दूंगा, जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा। तालमुद का एक दूसरा सूत्र कहता है कि परमात्मा बहुत कड़वा है, मीठा नहीं। परमात्मा से सावधान और संभल के चलना। उसके नियम बहुत कठोर है और जो चूका उस पर परमात्मा भयंकर आघात करता है। उस वातावरण में जीसस की यह घोषणा कि परमात्मा प्रेम है महत्वपूर्ण क्रांति थी, एक पड़ाव था मनुष्य की चेतना के इतिहास में। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बात और थोड़ी गहरी की जाए। इसलिए मैं इतना ही नहीं कहता कि परमात्मा प्रेम है, मैं तो कहता हूं प्रेम परमात्मा है। ऊपर से देखने पर तो दोनों एक जैसी बातें लगेंगी, मगर बस ऊपर से देखने पर भीतर आमूल भेद पड़ गया। परमात्मा प्रेम है, इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा का प्रेम एक गुण है, और भी गुण होंगे। ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, सृजन की शक्ति होगी, और भी अनंत गुण होंगे। उनमें प्रेम भी एक गुण है। लेकिन मैं कहता हूं प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा के और कोई गुण नहीं है। प्रेम में सब आ गया, प्रेम के बाहर कुछ भी बचता नहीं। इसलिए मेरे लिए प्रेम और परमात्मा पर्यायवाची है। प्रेम कहो या परमात्मा कहो, कुछ भेद नहीं, और प्रेम कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि परमात्मा के नाम से इतनी गंदगी हो चुकी है, परमात्मा के नाम से इतनी कीचड़ मच चुकी है, इतना उपद्रव, इतना खून खराबा हो चुका है, इतनी लाशों से पट गई है पृथ्वी कि वह नाम भी लहूलुहान है। लाख उसे धो तो भी उसे साफ नहीं किया जा सकता। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने बहुत विकृत कर दिया उस प्यारे शब्द को। लेकिन प्रेम शब्द अभी भी अछूता है, पुरोहित के हाथ में नहीं पड़ा है। पुरोहित के हाथ में जो पड़ा गंदा हुआ। पुरोहित ने जिसे छुआ, सोना हो तो मिट्टी हो जाता है। प्रेम शब्द अभी भी पुरोहित से बहुत दूर है, अभी भी कवियों के हाथ में है। इसलिए सुमधुर है, सुंदर है, सुस्वादु है। मैं तो पसंद करूंगा कि अब प्रेम के ही मंदिर होने चाहिए, परमात्मा के नहीं। With this message, Osho's reminder that now is the time to create temples of love and forget everything else. As God is love, or which Jesus said, but Osho improves upon it, says love is God. So with this loving energy,
We have a long distance hug to everybody. It was beautiful to be with so many loving friends. Whenever next opportunity comes, we come with the same love energy to greet each other. आप सबसे इस प्रेमपूर्ण संध्या, इस प्रेमपूर्ण अवसर का आनंद मिला. फिर अगले किसी अवसर पर आपको फिर मिलेंगे. आपको दूर से आलिंगन. Thank you very much, Swamiji. Thank you for coming and taking us through. Thank you, everybody, all the coordinators and everybody. Thank you very much.